Okay, see students here. This is your chapter number 3, and in the chapter number 3, we have to study the national income. Okay, so what are all points we supposed to study in the national income? So we have to study in this chapter meaning of national income, then what are the concepts of national income, what exactly the green national income, and then national income and economic welfare. These are all points we supposed to study in our third chapter. Okay, so we have completed the chapter number 1 and chapter number 2, and now today we are starting with the chapter number 3, and the name of the chapter is actually measurement of national product, but today we're going to study the point concepts of national income. Therefore, your topic is here concepts of national income. Okay. Now, first, you tell me, all of you, just tell me your point of view. Why we need to know the national income? National income पता होना क्यों जरूरी होता है? Why country should always measure the national income? What is the importance of national income according to you? उससे क्या पता to लगता fund the to to fund the know GDP. the living standard of a people. है? Okay, to understand the living standard of people. Okay, what else then? इससे और क्या फायदा रहेगा? हम्म और क्या लगता है? Okay, once one we will going to get the living standard of your people. It means you will able to understand कि लोगों का सिचुएशन कैसा है अभी, क्या मतलब उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव है या नहीं है करके, दैट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड थ्रू द नेशनल इनकम. देन व्हाट एल्स, और आपको क्या लगता है क्या होता रहेगा नेशनल इनकम पता होने से? क्या फायदा होता रहेगा किसी भी National economical national economical नेशनल इकोनॉमिकल, व्हाट आर सेइंग? strength. स्ट्रेंथ, हाँ मतलब कहाँ पे कौन सा सेक्टर ज़्यादा पावरफुल है, विच सेक्टर इज एक्चुअली contributing a lot compare with the other sector, so that also we are able to understand. So मतलब contribution मतलब see we are having many sector like agricultural sector है, then again we are having service sector, industrial sector. So through the national income we will come to know कि किसने कौन से सेक्टर ने ज़्यादा contribute किया है national income में. So with the help of that we are able to understand the sectoral growth of the economy. उसके बाद में as we are calculating the national income, so it will help you to compare like what was the previous year income and what is your current year income, and how that whether that income is has grown or not. If it is not growing, it means somewhere we are failing. ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में हम लोग कुछ अच्छा नहीं कर पाए, इसके लिए अपना इनकम नहीं बढ़ पाया. So that kind of a failureness also we are able to understand, and if we are doing something good, अगर नेशनल इनकम बढ़ रहा है, सो दैट इट विल ऑल्सो मतलब दैट विल ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड अस कि वाई वी आर ग्रोइंग फास्ट, कौन सा सेक्टर ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं. माई वॉइस इज ब्रेकिंग, इज इट कमिंग क्लियरली? Yes, ma'am. हाँ ठीक है. Yes, ma'am. Okay, okay. ठीक है. So we will start here. First, we will start with the introduction here. National income of a country can be defined as total market value of all final goods and services produced in the economy during a given year. So what is total market value of all final goods and services? यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग सी एवरी ईयर वी आर डूइंग सर्टन प्रोडक्शन, और जितना मतलब जो इकोनॉमिक्स थे, दे ऑल आर फीलिंग दैट अगर प्रोडक्शन मतलब जो रियल ग्रोथ हम लोग को देखना है कि एक्चुअल में रियल ग्रोथ है या नहीं. बिकॉज समटाइम व्हाट हैपन कि हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ता नहीं है, बट फिर भी नेशनल इनकम इंक्रीज हुआ है ऐसे दिखता है. तो वो क्यों दिखता है? बिकॉज वहाँ पे इन्फ्लेशन आया रहता है, कमोडिटी के प्राइजेस बढ़े हुए रहते हैं, and therefore there is no increase in production. But still, if we're going to count the production with the market value, then we are able to get the higher national income as compared with the previous year. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, and to understand exactly the real growth, so the most important is being given to the production. पैसे को इम्पोर्टेंट नहीं दिया उन्होंने, प्रोडक्शन को इम्पोर्टेंट दिया है. अगर हम लोग प्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज कर पाते हैं, देन ओनली इट कैन बी सेड लाइक yes, the real growth of the economy is happening. Okay, so how they are calculated? So national income can be defined as the total market value of all final goods and services produced. मतलब जितना भी प्रोडक्शन होता है उनका मार्केट वैल्यू क्या है. तो आप बोले कि मैम मार्केट वैल्यू से वहाँ पे इन्फ्लेशन तो दिखाई देगा, बिकॉज एवरी ईयर प्राइजेस आर इंक्रीजिंग. यहाँ पे क्या रहता है, रियल ग्रोथ जानने के लिए मार्केट वैल्यू वो लोग करंट ईयर जो रहेगा ना उसके अकॉर्डिंग नहीं लेते हैं. दे आर यूजिंग द बेस ईयर. बेस ईयर मतलब मतलब कुछ एक पर्टिकुलर साल को वो लोग अपना एज अ बेस ईयर कंसिडर करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग एवरी ईयर
वो जो प्रोडक्शन होता है उसको वो मार्केट वैल्यू देते हैं। ओके, सो वेन एवर दे आर कैलकुलेटिंग ऑल द गुड्स प्रोड्यूस, उनका उनके साथ अगर जब वो मार्केट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं एंड वट एवर लेवल ऑफ इनकम दे आर गेटिंग देयर, so that is called as your national income. So what you understood here, the most important should be given to the production of goods and services, and the second one here मार्केट वैल्यू के लिए भी एक बेस ईयर डिसाइड किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही प्राइजेस को काउंट किया जाता है। So this is what the way the national income has been counted and national income has been defined. Okay, now definition of national income. There are many economists who have given the definition here. So one we will going to see here, that is been given by AC Pigu. अभी Pigu के according what is national income? National income is that part of objective income of the community, including of course income derived from abroad, which can be measured in money. मतलब यहाँ पे जो पीगू है, पीगू ने यहाँ पे किस चीज़ों को इम्पोर्टेंट दिया है? He's saying like only those goods and services that are actually sold for money should be included. See, मैंने क्या कहा आपको कि मेनी इकोनॉमिक्स व्हाट दे आर सेइंग कि रियल ग्रोथ जानना है तो कितना प्रोडक्शन हुआ इंक्रीज, उसकी तरफ ध्यान देना है। बट व्हाट पिगू इज सेइंग कि नहीं, तुम लोगों ने भले वहाँ पे प्रोडक्शन किया है, बस उस जो प्रोडक्शन तुम लोगों ने बनाया उसमें से कितना तुम लोग सेल कर पाए, जितना आप लोग सेल कर पाते हैं और उसके थ्रू जो इनकम आप अर्न कर पाते हो उतने ही प्रोडक्शन को लेना चाहिए। वी शुड नॉट टेक लाइक फुल प्रोडक्शन की, मतलब बोलने के लिए तो हम लोग क्वांटिटी बहुत बना देंगे वहाँ पे, लेकिन अगर वो सेल ही नहीं होता है तो इट विल बी द काइंड ऑफ अ लॉस ओनली। सो देयरफॉर बिग पिगू इज सेइंग कि जितना हम लोग सेल कर पाते हैं उतना ही प्रोडक्शन को कंसिडर करो, और साइड बाय साइड जो हम लोग फॉरेन कंट्री के थ्रू भी जो अपने पास अर्निंग आता है, लाइक जो हम लोग प्रोडक्शन बना रहे हैं, एक्सपोर्ट एक्टिविटी जो हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं उनको, जो सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको भी हम लोगों को काउंट करना चाहिए। सो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन गिवन बाय AC Pigu. I'll give you one more here that has been given by Simon Kuznets. So Simon Kuznets had defined national income as the net output of commodities and services flowing during the year from the country's productive system in the hands of the ultimate customer. यहाँ पे even same thing has been given by the Kuznets. Kuznets is also giving the same point of view कि whatever is the output or the services we are producing here, वो कैसे flow हो रही है इकोनॉमी में, okay, whether people are using it or not, उसको ही, और whether it is going in the hands of the people or not, तो वो देख के हम लोगों को काउंट करना चाहिए नेशनल इनकम। सो दिस इज व्हाट द definition given by the AC Pigu and the Simon Kuznets, who are giving the most importance to the production, but that production should be in the hands of people. They should utilize it. The producer should able to sell that one. Then only it can be counted into the calculation of national income. Otherwise, we should not count it here. So, is this clear to you, student? Definition of national income. National income कैसे Yes, ma'am. count किया जाता है? Okay, okay. Now the next one here. Um, यस, विल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि हर एक का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि कैसे नेशनल इनकम का काउंट किया जाएगा। सो वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट वन ईयर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, तो सी व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हियर? इट इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ all final goods and services currently produced within the domestic territory of a country in a year. Four things must be noted regarding this definition. First, it measures the market value of annual output of goods and services currently produced. This implies that GDP is a monetary measure. देखो यहाँ पे जीडीपी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो जीडीपी ने किन चीज़ों को इम्पोर्टेंट दिया है कि जो भी हम लोग अपने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम लोग उनके मार्केट वैल्यू को काउंट करेंगे, देन वी विल एबल टू गेट द जीडीपी। अभी आप लोग बोलोगे मैम ये जीडीपी कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब सी डिफरेंट डिफरेंट वेज से लाइक इकोनॉमिक्स आर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। सो जीडीपी इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड कि जिसके अकॉर्डिंग नेशनल इनकम को काउंट किया जाता है। और वी कैन से लाइक व्हेन एनी इकोनॉमिक्स आर यूजिंग द इकोनॉमिक टर्म्स while explaining the growth and development of the economy, so they are using the GDP term। GDP को यूज करके वो लोग बोलते हैं कि इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट व्हाट लेवल अभी कंपेयर विद द प्रीवियस ईयर एंड ऑल, तो इसके लिए जीडीपी ये कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। ठीक है,
तो जीडीपी में किन चीज़ों को इम्पोर्टेंट दिया जाता है व्हेन दे आर सेइंग अबाउट द नेशनल इनकम? सो जीडीपी इज बेसिकली टॉकिंग कि लाइक अपना डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी प्रोडक्शन होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, उसके मार्केट वैल्यू को कंसिडर करना है। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ जीडीपी है। तो जीडीपी काउंट करते वक्त क्या क्या चीज़ों को ध्यान में देना है, कौन सी चीज़ों को कंसिडर करना है? तो फर्स्ट इट मेजर द मार्केट वैल्यू, ठीक है। सेकेंड हम लोगों ने क्या देखा, फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी एक्यूरेटली ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एनी गिवन ईयर मस्ट बी काउंटेड ओनली वंस सो एज टू अवॉइड डबल काउंटिंग। मतलब जो भी प्रोडक्शन, जैसे देखो अगर इफ आई हैव टू से कि पेन पेन का प्रोडक्शन है, आई एम द प्रोड्यूसर ऑफ पेन, तो मैं पेन बना रही हूँ, तो पेन मेरे लिए फाइनल कमोडिटी है, ओके। लेकिन देर आर द पीपल हु आर लाइक, वो लोग रिफिल का अगर वो लोग प्रोडक्शन करते हैं, तो रिफिल उनके लिए फाइनल कमोडिटी रहेगा। तो मुझे वहाँ पे कैसे रिफिल का अलग से कॉस्ट लेना है, देन पेन का जो फाइनल कमोडिटी बनेगा उसका अलग से कैलकुलेशन करना है, वैसे नहीं होना चाहिए, ओके। So whatever commodity I am taking here, that I should take it once, so that I will not going to have a double counting. अगर हम लोग ऐसे डबल काउंटिंग करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे वैल्यू दिखाएगा, जितना एक्चुअल में पैसा तो नहीं रहेगा इकोनॉमी के पास, ओके। So what they are saying, we should consider the final commodity and we should not take into consideration the prices of intermediary commodities. मतलब रॉ मटेरियल जो हम लोग बोलते हैं, तो वो चीज़ों को हम लोगों को इग्नोर करना है और डायरेक्टली हम लोगों को फाइनल कमोडिटी के बारे में ही बात करना है। Thirdly, GDP includes only currently produced goods and services in a year. Market transaction involving goods produced in the previous period, such as old houses, old cars, factories built earlier, are not included in the GDP of the current year. So GDP में we are basically taking into consideration the currently produced goods and services in a year. Suppose if I am measuring the national income for the year 2020-21, सो 2020-21 में क्या वहाँ पे प्रोडक्शन हुआ था, पुरानी चीज़ों को मैं फिर से यहाँ पे कंसिडर नहीं करने वाली हूँ कि क्या नई चीज़ें प्रोडक्शन हुई थी, उसके मार्केट वैल्यू को मैं कंसिडर करने वाली हूँ। एंड द लास्टली, जीडीपी refers to the value of goods and services produced within the domestic territory of a country by national or नॉन नेशनल। मतलब यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी बात करो तो आप लोग बोलेंगे कि मैम फिर ये यहाँ पे ऐसा है कि मतलब इंडिया के मतलब इंडिया के अंदर जितना प्रोडक्शन होता है वही हम लोग कंसिडर करेंगे क्या? फिर जो अपनी मतलब जो अपना कंपनी है, एमएनसीज है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एमएनसीज है जो मतलब अपने इंडिया में है, तो उनके प्रोडक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे क्या? नो, वी हैव टू कंसिडर दैट प्रोडक्शन ऑल्सो। वाई वी हैव टू कंसिडर दैट प्रोडक्शन? बिकॉज दे आर यूजिंग आर रिसोर्सेज, अपने इकोनॉमी के रिसोर्सेज को वो लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इवन उनके प्रोडक्शन को भी यहाँ पे काउंट किया जाएगा। मतलब वो लेकिन अपने इंडिया के अंदर ही होनी चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही होने चाहिए। सो दिस इज व्हाट द जीडीपी हियर। सो व्हाट यू अंडरस्टूड व्हाट इज जीडीपी हियर? बताओ मुझे, जीडीपी में बताओ, व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग जीडीपी, तो उससे हमें क्या पता चलता है? नेशनल इनकम के बारे में पता चलता है या फिर जस्ट एक एवरेज इनकम के बारे में पता चलता है? जीडीपी क्या National. कॉन्सेप्ट? यस, नेशनल इनकम के बारे में। national income. यस, वेरी गुड, ओके। एंड व्हेन वी आर सेइंग द जीडीपी, तो यहाँ पे क्या किया जाता है? प्रोडक्शन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस है या किसी और चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है? Production. हाँ, वो जो भी Production is प्रोडक्शन the base रहेगा, important. यस, वो जो भी प्रोडक्शन रहेगा वो प्रोडक्शन करंट ईयर का ही वो लोग कंसिडर करेंगे या फिर प्रीवियस ईयर में जो सेल नहीं हुआ है उसको भी कंसिडर करेंगे? Current यस, year. current year. यस, वेरी गुड, Currently. करंट ईयर को वो लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। देन अगेन व्हेन दे आर काउंटिंग दैट प्रोडक्शन विद द करंट विद द मार्केट वैल्यू, तो उस टाइम पे वो इंटरमीडिएट कमोडिटी का भी वैल्यू लेंगे या फिर जस्ट फाइनल कमोडिटी का वैल्यू लेंगे? बताओ मुझे, व्हाट डू यू से? इंटरमीडिएट Module. कमोडिटी मतलब रॉ मटेरियल का भी प्राइसेस को वो लोग कंसिडर करेंगे या फिर फाइनल को? यस, बीबी हजार एज Fi- फाइनल, यस, Final. Final goods. यस, फाइनल गुड्स को वो लोग कंसिडर करेंगे। ओके, वेरी गुड, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर जीडीपी कॉन्सेप्ट। नाउ विल स्टार्ट विद द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अभी जीडीपी के बाद में रहता है जीएनपी। मैंने आपको यहाँ पे आई थिंक जीडीपी का फॉर्मूला नहीं लिख के दिया है, बट जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस देन इनटू ब्रैकेट एक्स माइनस एम। सो कैन एनीवन टेल मी हियर व्हाट डू यू मीन बाय द सी? सी का यहाँ पे क्या मीनिंग रहेगा?
आपको नहीं पढ़ा है ना 12th स्टैंडर्ड में, थोड़ा याद करो, बोलो मुझे। Consumption, ma'am. Yes, very good. It will be the consumption. I stand for what? Investment. Investment. Very good. G stand for? Government. Very good. And X minus M? Export X and import. minus import. So that is called as net receipt from foreign trade. Okay. So abhi we are saying this net receipt. So net receipt from foreign trade, or we can say net export, that is export minus import. ये होता है यहाँ पे जीडीपी के बारे में. Now let's talk about GNP. GNP का क्या रहता है फॉर्मूला also, and GNP मतलब क्या होता है, क्या दोनों में डिफरेंस है GDP and GNP में. See, GNP is the total market value of all final goods and services produced in a year. This is the same definition which we have seen for the GDP. But यहाँ पे और एक है, GNP includes net factor income from abroad whereas GDP does not. मतलब GNP में क्या यूज किया जाता है, यहाँ पे हम लोग नेट फैक्टर इनकम जो भी हम लोगों के पास आता है अब्रॉड से, उसको भी हम लोग जीएनपी में कंसिडर करते हैं. ओके. सो देयरफॉर जीएनपी का बस एक ही अलग आपको बोलना है कि जो जीडीपी का फॉर्मूला, जीडीपी का जो मीनिंग है वो बताना है. उसके साथ में आपको बोला है कि नेट फैक्टर इनकम जो अब्रॉड से आता है, दैट वन आल्सो वी आर कंसीडरिंग हियर. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर जीएनपी? द जीएनपी फॉर्मूला इज जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. अभी आप बोले मैम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब एग्जैक्टली क्या? सो बिकॉज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट से हम लोगों ने जीडीपी में भी लिया था, तो यहाँ पे ये नेट फैक्टर इनकम क्या एडिशनल है? सो दिस इज बेसिकली देखो जीडीपी का फॉर्मूला क्या था, सी प्लस आई प्लस जी प्लस इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस एम. अभी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में और उसके फॉर्मूला के आगे प्लस आएगा एंड ब्रैकेट में आएगा आर माइनस पी. सो दैट इज रिसिप्ट माइनस पेमेंट. सो यहाँ पे आर मतलब क्या रहता है, इनकम रिसीव्ड बाय डोमेस्टिक फैक्टर्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन अब्रॉड. मतलब अंकल अंकल सांबर दो ना. वहां पर किसी को बहुत जोर से भूख लगी है, सांबार बनो करके मैंने सुना. ओके. क्लियर. यहाँ पे रिसीट मतलब क्या होता है कि इनकम रिसीव्ड बाय डोमेस्टिक फैक्टर फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन अब्रॉड. मतलब जो हम लोगों ने अब्रॉड में प्रोडक्शन के लिए हेल्प किया है. जैसे फॉर एग्जांपल वी लेबर आर गोइंग इनटू द फॉरेन कंट्री, और हम लोग वहाँ पे उनके प्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं, तो उसके लिए हमें इनकम भी मिलता है. सो वो इनकम को हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं. सो दैट इनकम वी आर एक्चुअली रिसीव फ्रॉम द अब्रॉड. प्रोडक्शन हम लोगों ने नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने उनके प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन किया है, एंड फॉर दैट पर्पज वी आर एबल टू गेट द इनकम. सो दैट नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द इंडियन नेशनल फ्रॉम अब्रॉड, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे. एंड व्हाट इज पेमेंट हियर? पेमेंट मेड टू द फॉरेन फैक्टर्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन बाय प्रोड्यूसिंग कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी. मतलब जैसे हम लोग एमएनसी की बात करते हैं, सो एमएनसी में देर विल बी द डोमेस्टिक लेबर एज वेल एज द फॉरेन पीपल विल ऑल्सो बी वर्क ऑन दैट. ओके. सो जो फॉरेन पीपल रहेंगे जो अपने इंडिया में ही है, लेकिन उनको जो भी पैसा मिलता है, जो भी इनकम हम लोग दे रहे हैं, ऑब्वियसली वो वहाँ पे उनके जो रिलेटिव्स रहेंगे फॉरेन कंट्री में, उनके पास वो देते हैं. सो दैट इज व्हाट वी आर सेइंग कि वो हम लोग पेमेंट दे रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, लेकिन वो पैसा कंट्री के पास नहीं रहता, वो पैसा उनकी कंट्री के पास, फॉरेन कंट्री के पास चला जाता है. सो देयरफॉर वी आर सेइंग इट एज अ पेमेंट. सो रिसिप्ट माइनस पेमेंट, इसको हम लोग कंसिडर करने वाले हैं जीएनपी में. तो अभी तुम लोग मुझे बताओ स्टूडेंट, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर जीएनपी? मतलब ये मत मुझे बताओ जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ऐसा मत मुझे बताओ, एकदम डिटेलिंग में बताओ. व्हाट विल बी द जीएनपी फॉर्मूला? यस. ओके. व्हाट इज द जीडीपी फॉर्मूला? सी प्लस बोलो. C plus I plus G plus in हाँ bracket X. हाँ, इन ब्रैकेट एक्स माइनस एम. लेकिन अगर यही बात मुझे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के पॉइंट के लिए ऐड करनी है, सो व्हाट आर गोइंग टू राइट हियर? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस. P. यस, वेरी गुड. बीबी हज़ार ने लिखा प्लस आर माइनस पी. ओके, दैट इज रिसिप्ट माइनस पेमेंट. यहाँ पे रिसिप्ट मतलब क्या रहेगा बताओ मुझे जल्दी से. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस आर वर्ड?
यहाँ पे रिसिप्ट मतलब क्या है? बताओ मुझे। अब्रॉड income क्या? from abroad. हाँ, That इनकम income फ्रॉम। contributing production abroad. यस, वेरी गुड, इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और पी स्टैंड फॉर व्हाट? पेमेंट। तो पेमेंट मतलब कहाँ से जा रहा है, बताओ मुझे। From our country. हाँ, फ्रॉम आवर कंट्री वी आर पेइंग इट टू द फॉरेन मार्केट, फॉरेन कंट्री। वाई वी आर डूइंग इट? बिकॉज वो लोग ने भी हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन में कुछ कंट्रीब्यूशन किया था, और इसके लिए वो हम लोग उनको पैसा दे रहे हैं। सो दैट वे। ओके, सो दिस इज व्हाट योर GNP. So GDP and GNP, both the concepts are clear to you? Yes, student? Is this clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, okay. Now we'll start with the next point here. Net national product at market price. देखो अभी net national product at market price मतलब क्या है exactly? See, NNP we are saying it. So NNP is the market value of all final goods and services after providing for depreciation. That is, when charges for depreciation are deducted from the GNP, we get NNP at market price. Therefore, NNP is equal to GNP minus depreciation. So you know the meaning of depreciation also. Depreciation is the consumption of fixed capital or fall in the value of fixed capital due to wear and tear. Okay. So NNP is what? Again, it will be the market value of final goods and services after providing depreciation. मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि डेप्रिसिएशन के वैल्यू जो रहती है उसको कट करने वाले हैं। यहाँ पे डेप्रिसिएशन को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। जब हम लोग इसको GNP में से डिडक्ट करते हैं, देन वी आर एबल टू गेट द NNP एट मार्केट प्राइस। मतलब जो पुरानी चीज़ें हैं, जो मतलब टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसका जो भी वेयर एंड टेयर कॉस्ट रहेगा, उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसको वहाँ पे डिडक्ट किया जाएगा। लेकिन वो किस में से डिडक्ट किया जाएगा? GNP में से डिडक्ट किया जाएगा। So then we are saying it as a NNP at market price. Okay, so this is what NNP. Then again NNP at factor cost. अभी हम लोगों ने देखा कि NNP at market price मतलब मार्केट वैल्यू को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। बट व्हेन वी आर सेइंग NNP at factor cost सभी क्या रहता है? NNP at factor cost or national income is the sum of wages, rent, interest, and profit paid to the factors for their contribution to the production of goods and services in a year. It may be noted that NNP at factor cost is equal to NNP at market price minus indirect taxes plus subsidies. मतलब यहाँ पे किन चीज़ों को इम्पोर्टेंट दिया जाता है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्टर कॉस्ट, इट मीन्स हियर द इम्पोर्टेंस इज बीइंग गिवन टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए जो भी हम लोगों ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किए हैं टोटल प्रोडक्शन के लिए, और उनको जब हम लोग पेमेंट देते हैं, मतलब वेजेस के फॉर्म में, रेंट के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में, या फिर प्रॉफिट के फॉर्म में, तो जब हम लोग उसको पेमेंट देते हैं और उसका जो भी टोटल खर्चा रहता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं NNP एट फैक्टर कॉस्ट में। तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ों को डिडक्ट किया जाता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिडक्ट किया जाएगा, लेकिन सब्सिडीज को उसके अंदर ऐड किया जाएगा। किसके अंदर? NNP एट मार्केट प्राइस के अंदर। So this is what NNP at market price. See, we have seen the four concept. We have seen GDP, then we have seen GNP, then we have seen NNP at market price, and then NNP at factor cost. Now the next one here, personal income. Personal income जैसे मतलब दिस इज ऑल अबाउट अस कि हर एक इंडिविजुअल के पास कितना इनकम आता है। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट द नेशनल इनकम. Personal income is the sum of all incomes actually received by all individual or household during a given year. In national income, there are some income which is earned but not actually received by households, such as social security contribution, corporate income taxes, undistributed profit. What are they saying कि when we are calculating the national income, तो हम लोग हमेशा प्रोडक्शन को इम्पोर्टेंट देते हैं और उसके थ्रू कितना इनकम आता है उन चीज़ों को इम्पोर्टेंट देते हैं। बट उसके अलावा भी लोग मतलब जैसे कि हम सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है, जैसे हम लोग पेंशन प्रोवाइड करते हैं, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स रहेगा, वो सब रहता है, तो वो सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं करते। तो उन्होंने कहा है कि पर्सनल इनकम में वी शुड कंसिडर दैट पार्ट. On the other hand, there are income transfer payment which is received but not currently earned, such as old age pension, unemployment benefit, relief payment, etc. Thus, in moving from national income to personal income, we must subtract the incomes earned but not received and add income received but not currently earned. ठीक है, तो यहाँ पे हाँ, पर्सनल इनकम इट मीन्स व्हाट एग्जैक्टली?
पर्सनल इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम, जो अपना नेशनल इनकम रहता है उसमें से माइनस करना है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन को, वो माइनस करना है, माइनस जो भी कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस हम लोगों ने पे किए उसको माइनस करना है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट को माइनस करना है, उसके साथ में हम लोगों को ऐड करना है ट्रांसफ़र पेमेंट को। ठीक है, मतलब यहाँ पे तुम लोगों को क्या ध्यान में देना है कि जो ट्रांसफ़र पेमेंट है, ट्रांसफ़र पेमेंट मतलब क्या रहता है, जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ाई किया कि ट्रांसफ़र पेमेंट में ट्रांसफ़र पेमेंट मतलब यहाँ पे फॉर द हेल्प, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है, स्कॉलरशिप आप लोगों को मिलता है, दैट इज़ ऑल कमिंग टू रिलीफ पेमेंट मिलता है फॉर एनी रीज़न, जैसे कि कोविड के लिए भी रिलीफ पेमेंट मिल रहा है। सो दैट वो भी एक एक तरह का इनकम हो गया, किसका इनकम हो गया, वो लोगों का इनकम हो गया। सो दैट वी हैव टू काउंट इनटू द पर्सनल इनकम। और किन किन चीज़ों को हम लोगों को नहीं काउंट करना है, सो दैट विल बी द सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन को नहीं काउंट करना है। देन अगेन जैसे हम लोग सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट, पीएफ वगैरह। ठीक है, ये पीएफ के वजह से आप लोगों को पता रहेगा कि सैलरी भले आपका बोलने के लिए 20,000 रहेगा, लेकिन पीएफ भी उसके अंदर का 2,000 का कट होता रहेगा। इवन ई पीपल आर पेइंग द प्रोफेशनल टैक्सेस ऑल्सो सैलरी में से, है ना। मतलब जनरली मैं आपको बोलूँ तो 1800 रुपया कुछ उनका पीएफ का कंट्रीब्यूशन रहता है, एंड देन 200 रुपीज़ इज द प्रोफेशनल टैक्सेस, सो दैट वी कैन से द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स वगैरह। ठीक है, तो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन के लिए जो पैसा जाता है उसको हम लोगों को काउंट नहीं करना है। एंड देन अगेन कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो रहता है उसको भी काउंट नहीं करना है। एंड जो कॉर्पोरेट का प्रॉफिट रहता है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, उसको भी काउंट नहीं करना है। ओके, सो दिस इज व्हाट योर पर्सनल इनकम। एंड देन डिस्पोजेबल इनकम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये हमेशा आता है इकोनॉमिक्स में, एंड यू शुड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या होता है, फ्रॉम पर्सनल इनकम इफ वी डिडक्ट पर्सनल टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स, पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स एक्सेट्रा, what remained is called disposable income. Thus, disposable income is equal to personal income minus personal taxes. Disposable income can either be consumed or saved. Therefore, disposable income is equal to consumption plus saving also. अभी डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या रहता है कि जैसे एक इंडिविजुअल का बात, यहाँ पे इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, पर्सनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पर्सनल इनकम तुम्हारा रहेगा, सैलरी रहेगा आप लोगों का 20,000, लेकिन 20,000 में से आपके हाथ में आता है 18,000 ओनली। ठीक है, यू आर एबल टू गेट ओनली 18,000 इन हैंड, तो ये 2,000 कहाँ चला गया। तो ये जो 2,000 है, ये 2,000 तुम्हारा जाता है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन में, पेइंग द टैक्सेस, है ना, प्रोफेशनल टैक्सेस वगैरह, उसमें चला जाता है। सो देयरफॉर टू यूज द मनी फॉर योर कंजम्पशन पर्पस, वो जो हाथ में जितना अमाउंट आपके हाथ में आता है, सो दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज योर डिस्पोजेबल इनकम। सो वट एवर अमाउंट यू आर अर्निंग और गेटिंग इन योर हैंड, सो उसमें से आप कुछ अमाउंट कंजम्पशन के लिए यूज़ करोगे, कुछ अमाउंट आप उसका सेविंग करोगे। सो देयरफॉर डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। और एक दूसरा वहाँ पे फॉर्मूला लाइक डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या होता है कि पर्सनल इनकम में से जब हम लोग पर्सनल टैक्सेस को निकाल देते हैं, देन वी आर एबल टू गेट द disposable income. This one is clear to you, student. What is disposable income? Yes, able to understand? Yes, ma'am. हाँ, okay. Now I think this one could be the last one here. Yes, green national income. ग्रीन नेशनल, ये नया कॉन्सेप्ट है यार, ये मतलब पहले नहीं था। आई थिंक जब तुम लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते रहोगे तभी भी ये नहीं रहेगा। दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस। अभी जैसे आप लोगों को पता रहेगा कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो भले हम लोग हमेशा बोलते हैं कि नहीं प्रोडक्शन बढ़ाओ प्रोडक्शन बढ़ाओ, लेकिन विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन जो इकोनॉमी का लॉस हो रहा है, एनवायरमेंट का लॉस हो रहा है, इवन दैट पार्ट वी हैव टू काउंट इनटू जीडीपी। ठीक है, हम लोग इन्वायरमेंटल को भी अभी उन्होंने वैल्यू देना स्टार्ट किया है अकाउंटिंग में। सो व्हाट इज ग्रीन नेशनल इनकम, और वी कैन से ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? इट इज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ that measures the environmental effects on growth of conventional जीडीपी। मतलब जो भी अपना जीडीपी है, जो भी हम लोग इकोनॉमिकल ग्रोथ कर रहे हैं, उसके वजह से इकोनॉमी का जो एनवायरनमेंट है वो कैसे अफेक्ट हो रहा है, कितना वहाँ पे नुकसान हो रहा है, कितना पोल्यूशन हो रहा है, तो अभी उसको भी काउंट किया जाता है ग्रीन नेशनल इनकम में। It takes into account the environmental impact on a country's economic growth, like it measures the loss of biodiversity, the cost of climate change,
and pollution in the process of production of goods and services that are accounted for the calculation of GDP. What do you all say, student? ये बहुत ज़रूरी है क्या calculate करना? Yes, what is your point of view? हम लोगों को उस हिसाब से भी कैलकुलेशन करना चाहिए when we are calculating the national income. What is your point of view on this? ग्रीन नेशनल इनकम होना चाहिए हमेशा, Yes, ma'am. है ना? Yes. लेकिन मैं आपको बोलूँ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, दो दे हैव सेड कि ग्रीन नेशनल इनकम रखना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेजरमेंट होना चाहिए. बट अभी तक प्रैक्टिकली दे आर नॉट एबल टू गिव द वैल्यू, दे आर नॉट एबल टू गिव द वैल्यू. इट मीन्स कि कितने पॉल्यूशन लेवल के लिए कितना पैसा डिडक्ट करना चाहिए, अगर कुछ बायोडाइवर्सिटी हो जाता है तो उसके लिए कितना पैसा डिडक्ट करना चाहिए, वो मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन स्टिल दे आर नॉट क्लियर विद दैट कॉन्सेप्ट. अभी भी मतलब हम लोग बोल रहे कि ये कॉन्सेप्ट उन्होंने स्टार्ट किया है, बट एग्जैक्टली वो वैल्यू को कैसे मेजर करना है, क्या वो जो उन्होंने जो वैल्यू डिसाइड किया गया है वो कैसे क्या वर्थ है वो पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, दैट क्लैरिटी इज नॉट स्टिल देयर. सो दिस इज व्हाट द GN, what we can say, green national income concept. But yes, from my point of view also it is very important, because we have to understand ki we cannot always run behind production just to show that the economy is growing. With the economy growing, agar जैसे you can see the current situation ना, because of the pollution, or we can say भले वो वहाँ पे एक वायरस रहेगा, बट दैट वायरस इज आल्सो वन काइंड ऑफ इट हैज बीन क्रिएटेड बिकॉज ऑफ पोल्यूशन. भले उसको बोला जाता है कि लैब में क्रिएट किया गया है, हु नोज व्हाट एग्जैक्टली इट इज, लेकिन अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, एनवायरमेंट में ऐसा कुछ खराबी हो जाता है, तो उसकी वजह से हाउ मच लॉस वी आर फेसिंग. सो देर इज नो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन वहाँ पे अगर हमारा एनवायरमेंट को लॉस हो रहा है तो. सो इवन while calculating the national income we have to take into consideration the green national income also. So this is all about your concepts of national income, student. Is this clear to you, all the concept? Can I have the revision? एक रिवीजन करेंगे, जितना याद आ रहा है उतना बोलते जाओ. ओके, चलो. नाउ टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ GDP. व्हाट इज द फुल फॉर्म Gross ऑफ domestic ग्रॉस? Gross domestic product. Yes, very good. Tell me here, when we are talking about the GDP, so GDP में what is the formula for GDP? Tell me that first. What is the formula for GDP? consumption plus investment plus government plus in bracket export and import. हाँ, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. तो GDP में हम लोग क्या करने वाले, जो भी प्रोडक्शन होता है वो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना होता है उसको कंसिडर करेंगे, या फिर फॉरेन कंट्रीज से कितना इनकम और पेमेंट हुआ वो सब भी कंसिडर करेंगे. व्हाट यू ऑल से? डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है उसको ही कंसिडर करेंगे, या फिर और भी हम लोग फॉरेन कंट्रीज का भी कंसिडर करेंगे? यस, BB हजारा हैज गिवन डोमेस्टिक ओनली. वेरी गुड. एम आई, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और ओनली BB हजारा को समझा क्वेश्चन? बाकी लोग को भी No, समझा ना? ma'am. मैम समझा कुछ. हाँ. नेक्स्ट इज GNP. अभी आप लोग मुझे GNP के बारे में बताओ. GNP में व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GNP? फर्स्ट यू टेल मी दैट. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GNP? Gross Gross national product. national product. Yes. So when I'm saying about the gross national product, so uh, compare with GDP, वहाँ पे क्या नया concept आ जाता है? Receipt minus payment. Yes, receipt Payment. minus payment. Okay, so that we are, in short, we are saying it as a net income from abroad. Okay, so when we are GDP plus net income from abroad is considered as GNP. उसके बाद में हम लोगों ने देखा था NNP at market price. What do you mean by the NNP at market price? वहाँ पे क्या चीज़ों को डिडक्ट किया जाता है NNP के लिए? When we are calculating the NNP, the Depreciation. yes, Depreciation. depreciation. When I am saying NNP at factor cost, उस टाइम पे क्या कैलकुलेट किया जाए, किन चीजों को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा? बताओ स्टूडेंट. Profit, wages, income. हाँ, मतलब हम लोग फैक्टर इनकम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे. जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको हम लोगों ने जो पेमेंट दिया है उस चीज़ों को वहाँ पे हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे. वेरी नाइस, वेरी गुड वन. नाउ टेल मी अबाउट द पर्सनल इनकम. पर्सनल इनकम में क्या क्या चीज़ों को काउंट किया जाता है और किन चीज़ों को डिडक्ट किया जाता है? टेल मी. बताओ मुझे पर्सनल इनकम में. अच्छा ठीक है, पहले ये बताओ मुझे पर्सनल इनकम में किन चीज़ों को ऐड किया जाता है, ये बताओ मुझे. Profit and transfer. Consumption. क्या क्या? Profits and transfer payment.
प्रॉफिट को तो नहीं ऐड किया जाता है, ट्रांसफर पेमेंट को ऐड किया जाता है, लेकिन जो प्रॉफिट रहता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट को डिडक्ट किया जाता है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को डिडक्ट किया जाता है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन को डिडक्ट किया जाता है, किसमें से? नेशनल इनकम में से। ओके, नाउ टेल मी अबाउट द डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, क्या पैसा रहता है ये? बताओ। Consumption plus हाँ, कंजम्पशन, investment. consumption plus saving. Okay, we can say yeah, the saving amount we can use it for the investment also. So consumption plus saving also we can say, consumption plus investment also we can say here, but generally consumption plus saving बोलो because investment करेंगे तो हम लोग को और वहाँ पे अर्निंग होता है. So we can write here consumption plus saving, मतलब ये ऐसा पैसा है कि जो तुम लोग एक्चुअल में यूज करोगे कंजम्पशन और सेविंग करने के लिए. दिस इज व्हाट योर डिस्पोजेबल इनकम. एंड ग्रीन नेशनल इनकम मतलब क्या होता है स्टूडेंट, क्या चीज़ों को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है? व्हाट पॉइंट वी शुड कंसिडर अंडर ग्रीन नेशनल इनकम while calculating the production of goods and services? environment effect. Yes, environmental effects को consider. Biodiversity. यस, वेरी गुड वेरी गुड. बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को ध्यान में रखना चाहिए. वेरी नाइस वन. काजल, सेंड मी द स्क्रीनशॉट ऑफ अटेंडेंस. नाउ इट इज शोइंग लेस देन 1 मिनट. सो वी हैव डन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. एक और पॉइंट रहेगा इस चैप्टर में से, दैट विल बी द फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम करके रहेगा, एंड द मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम.